Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one PD and this one lecture number 2. Lecture number 2. Okay. We proceed further. In the last class we already discussed what is the elimination method of arbitrary constant. Okay. In that scenario, what we can say that we write here by elimination of arbitrary constants. See here basically what this one basically this kind of thing. Suppose z equal to ax plus by plus ab. This one example. So zx is our a, zx को हम p बोलते हैं, and q equal to zy equal to b. From here our required pd is pxp plus yq plus pq. Okay, this type of thing is this. ठीक, यहाँ पे देखो क्या था ना, यहाँ पे आर्बिटरी वेरिएबल ए बी था, ए बी, उसको हम किससे रिप्लेस किए? पी क्यू से रिप्लेस किए. ठीक है, where p is del z by del x मतलब zx and q is del z by del y ताकि zy. Fine, these are two situations. Okay, by eliminating arbitrary constants. But under this situation मतलब under this scenario three cases may arise. Note, better write three situations may arise. What are those situations? First one is, suppose when this situation is when number of arbitrary constant, मैं एक एक मेथड बोलूंगा, उनके लिए एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करूंगा. देन इट इज हेल्पफुल फॉर यू, राइट? As I did in the first lecture as well, here also I am doing same thing continuously. Okay, see, when the number of arbitrary constant is less than, when the number of arbitrary constant is less than the number of independent variables, then the elimination of arbitrary constant, usually gives rise to more than one PD of order 1, to more than one PD of order 1. How? मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगा तो क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल ये है, z इक्वल टू ax प्लस y. यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स कितना है? 1 है. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? 2 है. ट्राई टू अंडरस्टूड हेयर. सी फ्रॉम हेयर व्हाट आर द पीडी. पहले तो ये देखो व्हाट आर द पीडी, देन यू कैन फील दैट दिस एग्जाम्पल इज वैलिड.
zx equal to a, that is p equal to a. From here what you can say? From here you can say z equal to px plus y एक pd है, ठीक है, एंड जेड वाई कैलकुलेट करो 1 है, दिस वन इज अनदर पीडी, तो 2 पीडीज आर देयर. ये क्या बोल रहा था? मोर देन 1 पीडी. अच्छा, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितना है? 1 है, दैट इज ब्रैकेट में लिख देता हूं ये. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? दैट इज 2, ब्रैकेट में लिख देता हूं. कौन कौन? x एंड कौन? y, ठीक है. नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इज 1, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 2. फाइन, ओके, ठीक है. ये हो गया सिचुएशन नंबर 1. व्हाट अबाउट सिचुएशन नंबर 2? सिनेरियो 2. सिनेरियो 2 इज when the number of arbitrary constant, the number of arbitrary constant, देखो, see, if you complete this playlist for PD, then you may definitely learn and try to and you can able to solve maximum 95% to 100% questions in your exam. So try to follow this playlist completely. When the number of arbitrary constant is equal to number of independent variable, then the elimination of arbitrary constants shall gives rise to a unique PD of order 1, unique PD of order 1. एग्जाम्पल दूंगा तो और क्लियर होगा. एग्जाम्पल फॉर यू, दैट इज ए जेड प्लस बी. यहाँ पे देखो दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है, ए एंड बी. ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई. यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. कौन कौन है? दिस, क्या कौन कौन? एक्स एंड वाई. ए जेड एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर. फ्रॉम हेयर जेड एक्स इक्वल टू ए एंड zy equal to 1. From here zy equal to 1 by a. That implies p equal to a, that implies q equal to 1 by a. ठीक है. From here what we can do? Now p into q equal to a into 1 by a. Therefore that implies pq equal to 1. This is our required PD, and that PD is unique. ऑर्डर 1 है क्योंकि हाईएस्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर कितना है? 1 है. दैट्स व्हाई दिस हैपन. ठीक है. सिचुएशन नंबर 3. फर्स्ट सिचुएशन बोला था, यहाँ पे बस एकदम शॉर्ट में लिख दूंगा कि number of arbitrary constants greater than number of independent variable. Now it is clear. ऐसा सिनेरियो होगा तो then the elimination of arbitrary constants shall gives
you can write leads to a PD of order usually greater than 1। पहले बोला था मोर देन 1 पीडी मिलेगा, दूसरा केस में जब इक्वल हो जाएगा बोल रहे यूनिक मिलेगा, जब बोले नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा देन उनका जो ऑर्डर होगा ना वो 1 से ज्यादा होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करूं तो देखते हैं क्या हाल होगा। मैं बोल रहा हूं z इक्वल टू ax प्लस by प्लस cxy, ये है zx फाइंड करना a प्लस cy, अच्छा zy फाइंड करना दैट इज b प्लस cx, ठीक है। zx zy फाइंड किया, अच्छा यहां से zxx फाइंड करना, zxx फाइंड करना वो 0 होगा, यहां से zyy फाइंड करना 0 होगा। कोई भी मिलो ये यूनिक होगा ऐसा नहीं बोला गया। 2 पीडी तो मिला, 2 PDs but both have order greater than 1, ठीक है। तो ऐसा सिनारियो के लिए क्या बोला था, यूजुअली ऑर्डर कितना होगा जो पीडी मिलेगा ग्रेटर देन 1 होगा। यूनिक मिलेगा कि मोर देन मिलेगा उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, बस ये गारंटी दे रहा हूं जो मिलेगा पार्शियल डेरिवेटिव सॉरी पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसका ऑर्डर यूजुअली ग्रेटर देन 1 ही होने वाला है। क्लियर? अच्छा नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर पीडी हो गया। देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, मैं फ्लो चार्ट ऐसे सोचने की कोशिश करना। पहले क्या था, व्हाट इज पीडी, हमने पहले सीख लिया पीडी क्या है। देन देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी दैट इज बेसिकली व्हाट, लीनियर होगा ना सेमी होगा ना क्वासी होगा ना नॉन लीनियर होगा, ठीक है। ये सब हम लोगों ने देख लिए है। क्लियर? इसके बाद हमने जो गया वो है, वो बेसिकली उसका नाम है क्या बोलते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पीडी, फॉर्मेशन ऑफ पीडी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या था, एक तो एलिमिनेटिंग आर्बिटरी कांस्टेंट था, दूसरा क्या था, एलिमिनेटिंग आर्बिटरी फंक्शन था, ठीक है। ये दो है, ठीक है। अच्छा यहां से हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि अंडर एलिमिनेटिंग आर्बिटरी कांस्टेंट, थ्री डिफरेंट सिचुएशंस हमने डिस्कस किया, ठीक है। 3 डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद क्या आएगा बताओ, पीडी तो हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद सॉल्यूशन, डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन, द और ए सॉल्यूशंस ऑफ, दा नहीं होगा, सॉल्यूशंस बोला पीडी, ठीक है। नाउ क्या स्टेप होगा ना, पीडी का जो सॉल्यूशन मिलेगा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस वन और फ्लो चार्ट ऐसा फ्लो चार्ट आप भी बना सकते हो कि
इसके बाद ऐसा ऐसा स्टेप फॉलो करना है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब पीडी का सॉल्यूशन तो मिलेगा। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो सपोज जेड का कुछ एक्सप्रेशन आ गया जो जिनको हम बोल रहे हैं पीडी का सॉल्यूशन, इसका मतलब उसको पीडी के अंदर पुट करेंगे तो वो पीडी को सेटिस्फाई कर जाएगा, फाइन, दैट्स व्हाई इट इज सॉल्यूशन। ओके, नाउ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, नाउ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ओके, टाइप ऑफ solutions, type of solutions. First one is complete integral, दूसरा है general integral, general integral, तीसरा है particular integral, चौथा है सिंगुलर इंटीग्रल। Now I discuss one by one thoroughly. Okay, complete integral, what is this? What is this? This part, this complete integral, what is this? Okay, complete integral. Complete integral is basically ये है फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पीडी, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पीडीई, सपोज दिस f of x, y, z, p and q, okay, pq equal to 0 is this one basically क्या is two parameter a b parameter are there, most probably you can say two parameter family of surface, family of surface, two parameter family of surface, and this is non-linear PD, and this is non-linear PD, non-linear, okay, ना तो linear है, ना तो quasi है, ना तो semi है, it is non-linear PD, okay. Then z equal to f of x, y, z, a, b, a 2 is a complete integral of 1, complete integral of 1 if rank of matrix m is 2, फाइन। पहले फिर से रीड करो कि एक फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पीडी लाइक दिस, वो क्या है, टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेस एंड दिस इज नॉन लीनियर पीडी, फाइन। देन z equal to f of x, y, z, a, b is complete integral of 1 if rank of the matrix M is 2. Now question is, what is that M matrix? So where M matrix is this. यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है,
इसको आप एफ लिखो देन बेहतर है। सी, इसको आप एफ लिखो तो बेटर होगा। एफ, इसको कैपिटल एफ लिखो, वो स्मॉल एफ था, ये कैपिटल एफ, ठीक है। देन क्या होगा, एफ ए, एफ एक्स ए, एफ वाई ए, एफ बी, एफ एक्स बी, एफ वाई बी, ठीक है। ये है एम। हो यार, और लिखने का जरूरत नहीं, एफ ए मीन्स डेल एफ बाई डेल ए, यू नो ऑल एवरीथिंग, राइट। लिख देते हैं हेयर, व्हायर नहीं, हेयर एफ ए डेल एफ बाई डेल ए, एफ बी डेल एफ बाई डेल बी, एफ एक्स ए डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल ए, अच्छा, एफ वाई ए इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल ए, एफ एक्स बी इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल बी, एफ वाई बी इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल बी, लाइक दिस। तो पहले ये सोचो, उसको तभी कॉम्प्लीट इंटीग्रल ऑफ वन बोल सकते हो जब वो कि मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाए, मतलब बेसिकली उनका नंबर ऑफ रो 2 है, 2 नॉन जीरो रो, 2 पाइवोटल एलिमेंट मिल जाए इन द रो एशेलॉन फॉर्म, फाइन रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, एनीथिंग यू कैन से, ठीक है। दिस वन इज नोन एज complete integral, ओके। नाउ इट इज फाइन। नेक्स्ट जो आएगा वो है जनरल इंटीग्रल, मतलब यू कैन से दिस वन एज जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, जनरल इंटीग्रल, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, फाइन। व्हाट इज दिस, पहले था कॉम्प्लीट इंटीग्रल। कॉम्प्लीट इंटीग्रल होने के लिए क्या होना है वो तो मैं बता ही दिया हूं, अभी एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हो, राइट। ऑलरेडी आई डिस्कस एवरी, for everything I discuss one example. Now I skip these things because I thoroughly explain what is the major idea, so no example needed at all, okay। See, जनरल इंटीग्रल और जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम दो केसों के लिए डिस्कस करूंगा। इन केस ऑफ क्वासी लीनियर, इन केस ऑफ क्वासी लीनियर, और दूसरा है इन केस ऑफ नॉन लीनियर, इन केस ऑफ क्वासी लीनियर, और दूसरा है इन केस ऑफ नॉन लीनियर, पीडी ऑब्वियसली, राइट, ओके। अच्छा, फर्स्ट है इन केस ऑफ क्वासी लीनियर, इन केस ऑफ क्वासी लीनियर, क्वासी लीनियर पीडी, ये क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ क्वासी लीनियर पीडी, ये क्या बोल रहे, कंसीडर क्वासी लीनियर पीडी, पहले तो कंसीडर करो, कंसीडर क्वासी लीनियर पीडी क्या है, क्वासी लीनियर पीडी का जनरल फॉर्म ही मान लेते हैं ना भाई, क्या प्रॉब्लम पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू एक्स वाई जेड क्यू इक्वल टू आर एक्स वाई जेड, ये क्वासी लीनियर पीडी हमने कंसीडर कर लिया है, क्लियर, ये कंसीडर कर लिया, ओके। अच्छा, डी एक्स बाई पी, डी वाई बाई क्यू, डी जेड बाई आर, this one Lagrange auxiliary equation. I will discuss this thoroughly with you.
equation, and this is equivalent to, and this is equivalent to simultaneous equation. Okay, this is equivalent to simultaneous equation. Here we find two independent solutions. The general solution क्या होगा ना, आइदर लिख दो फाई ऑफ u कोमा v इक्वल टू 0, और लिख दो u इक्वल टू एनीथिंग अगेन दैट फंक्शन ऑफ v, और लिख दो v इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली जेनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जेनरल इंटीग्रल, यू कैन से इंटीग्रल मीन्स यू कैन से सॉल्यूशन, राइट। इसको जेनरल सॉल्यूशन बोल सकते हो इन केस ऑफ क्वासीलिनियर, क्लियर। अच्छा, दूसरा जो है वो है इन केस ऑफ नॉन लीनियर पीडी, in case of non-linear PD. In case of non-linear PD, for this we finally need complete integral. For this we finally need complete integral. Let x, y, z a b equal to 0. F x, y, z a b equal to 0 be the complete integral. शॉर्ट में लिख दिया CI, ओके। Let f x, y, z a b be the complete integral. Here given b equal to phi of a or a equal to phi of b. Try to understood this one. किसी एक दिया है, दो नहीं दिया, मतलब कोई एक फॉर्म में दिया है, फाइन। Therefore complete इंटीग्रल इज क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए, मैं मान लिया कि फर्स्ट वन बी इक्वल टू फाई ए दिया है, इन दिस केस क्या होगा, ये फाई ए हो जाएगा। दूसरा होगा तो क्या होगा, फाई बी कोमा बी कर देंगे, फाइन, दिस वन कंप्लीट इंटीग्रल, ओके, कंप्लीट इंटीग्रल। नाउ क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। नाउ फाइंड द एनवेलप ऑफ दिस, envelope of this, which is found by del f by del a equal to 0 and eliminating a from f equal to 0 and del f by del a equal to 0. Therefore general solution, general integral or general solution is the envelope of one parameter
one parameter family of surface. What is that family of surface? This one. Maybe boring results, but these are important because using these things you can try to able to calculate complete solution, general solution, particular solution, singular solution. 4 type of solutions are there. Family of surface, and is given by like you can say function of x y z equal to 0. ठीक है, this one is our complete integral. Okay, sorry, this one is our general integral. For that complete integral family of surface we got one parameter family of surface. For that this one is the general solution or general integral, you can say. Fine. Okay, third one is very easy. Sorry, AB नाम दिया था और 2 AB. So this one C. Third one is easy because this one is particular integral. Particular means, you know, if you try to translate the meaning of particular in Hindi, then you can predict that what I want to say by this particular integral. What is the particular integral? Particular integral. Particular integral. Okay, if b equal to phi a dependent on our choice, dependent on our choice मतलब particular, ठीक है, then h x y z इक्वल टू 0, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब हम लोगों ने चूज किए हैं सॉल्यूशन को पर्टिकुलरली, सो दैट्स व्हाई इट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके, एंड D, that is singular integral और singular solution. ये क्या है? ये बोल रहा है कि सपोज हमारे पास PD कंसीडर कर लो. कंसीडर PD, कौन सा वाला PD? मान लो f ऑफ x y z p q इक्वल टू 0. ठीक है, ये कंसीडर कर लिया. ठीक है, कंसीडर PD दिस. complete integral of 1 is complete integral of 1 is f of x y z a b. ठीक है, क्लियर आउट फॉर्म के लिए तो यही होता है, तो उसको मान लेते हैं क्लियर आउट फॉर्म. ठीक है, हम लोगों ने कॉम्प्लीट इंटीग्रल को ये मान लिया, दिस वन इक्वल टू 0. पीडी के लिए कॉम्प्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 इज दिस. अच्छा, नाउ हम लोग क्या करेंगे? डेल ए बाई डेल ए इक्वल टू 0 करेंगे एंड डेल ए बाई डेल बी इक्वल टू 0 करेंगे. सोचो जरा कि हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए बी लिया हो. eliminating a and b from, इसका नंबर दे देता हूं 2, इसका नंबर दे देता हूं 3. 2 and 3, वो जो आएगा ना वहां से 2 and 3 से eliminating a and b, singular solution is given by singular solution is
given by g of x, y, z equal to 0. 0. If it satisfy the given PD, it is called singular integral. It is called singular integral. ओके अच्छा, मैं आपके लिए एग्जाम्पल डिस्कस कर दूं तो अच्छा होगा. At least one example for that first one. First one is you need to know about that concept, right? See, example, prove that z equal to ax plus by plus x square plus a square plus b square is complete integral of the f x y z p q equal to z minus px minus qy minus p square minus q square. Fine, that is equal to 0, right? तो कैसे करोगे इसको? करने के लिए आपको क्या करना है ना, सी यहाँ पे जो z है वो है px प्लस qy प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. ये कौन सा फॉर्म है? दिस वन क्लियर आउट फॉर्म. क्लियर आउट फॉर्म, ठीक है, ये क्लियर आउट फॉर्म है. अच्छा, देयरफॉर complete integral is z equal to ax plus by plus a square plus b square. फॉर क्लियर आउट फॉर्म क्या करेंगे? p इक्वल टू a से एंड q इक्वल टू b से रिप्लेस कर देंगे तो कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा. फाइन, कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा. ओके अच्छा, बट हमारा जो डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ना, हमें क्या करना है, मैं यहां से मैं मान लेता हूं f इक्वल टू z माइनस ax माइनस by माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो f a क्या होगा? f a होगा माइनस x माइनस 2a. f a क्या होगा? माइनस x माइनस 2a. ठीक है, अब ऐसे मानो. अच्छा, एफ बी क्या होगा? माइनस वाई माइनस 2b. अच्छा, एफ एक्स ए क्या होगा? माइनस 1. एफ एक्स बी क्या होगा? 0. एफ वाई ए क्या होगा? एफ वाई ए, राइट. एफ वाई ए जो है वो क्या होगा? एफ वाई ए 0 एंड एफ वाई बी क्या होगा? माइनस 2. नो, ये माइनस 2 है. वाई एफ है, ये एफ बी था, ये एफ बी था. ठीक है, ये बेसिकली एफ बी था. दैट्स वाई प्रॉब्लम अराइजेस. एफ वाई बी क्या होगा? वाई बी होगा माइनस 1. फ्रॉम हेयर यू कैन चेक दैट जो एम मैट्रिक्स है ना हमारा वो क्या होगा? माइनस एक्स माइनस 2a माइनस 1 0 0 माइनस 1 और माइनस वाई माइनस 2b.
यहाँ से देखो ना, ये पाइवोटल पाइवोटल, इनको कुछ भी बैठा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स रैंक ऑफ m क्या है, 2 है। दैट इम्प्लाइज इट इज कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन हमने क्या किया, ये था गिवन पीडी, हमने बोला कि इसका ये कौन सा फॉर्म में दिया है, ये क्लियर आउट फॉर्म में दिया है, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा ना, z को मतलब zx मतलब p को a से रिप्लेस कर दो, एंड q मीन्स zy को b से रिप्लेस कर दो, कर दिया। देन वेरीफाई करके दिखाया कि जो m मैट्रिक्स हमारा आएगा उसका रैंक 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट इंटीग्रल है। फाइन, होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर यू। ओके, अच्छा, नेक्स्ट दिन मैं जो चीजें डिस्कस करूंगा वो है लैग्रांज मेथड। ओके, उसके बाद क्या आएगा, चारपिट्स मेथड, बट दिस वन इनफ फॉर यू। आज हम लोगों ने क्या सीखा, बेसिकली हम लोगों ने पहले तो सीख लिया कि 3 different scenario situations in the method of finding PD using arbitrary constant elimination method. Okay, elimination of arbitrary constant, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद क्या किया ना, पीडी का सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया, मतलब एक पीडी लिया उसका क्या सॉल्यूशन होगा उसके बारे में नहीं डिस्कस किया, बट सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। फर्स्ट वन इज कंप्लीट इंटीग्रल, देन क्या है मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन, देन क्या है जनरल इंटीग्रल मतलब जनरल सॉल्यूशन, थर्ड क्या है, थर्ड वन इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड फोर्थ वन इज आवर सिंगुलर इंटीग्रल। ओके, फाइन, एंड आई डिस्कस हेयर वन बाय वन थॉरोली, एंड फॉर दैट क्या बोलते हैं उसको, general integral I discussed two separate cases. One is for quasi-linear PD, second one is for non-linear PD I discuss. Okay, particular integral is basically complete integral, ठीक है, बट हम लोगों ने जो चॉइस किया था b इक्वल टू 5a और a इक्वल टू 5b, in that general solution basically if we choose particular value of a equal to phi b or b equal to phi a, then we got one solution. If that solution satisfies that PD, that solution is known as particular integral, and after that I calculate singular integral. How? First I calculate complete integral, I mean suppose it is clear out form, so particular integral is this. After that what I got, in complete integral is in form of arbitrary constants a and b, then I take partial derivative with respect to a and with respect to b for that complete integral function capital F. After eliminating a and b we get one solution, that solution is known as singular solution or singular integral, and we must need to check that this solution must satisfy the given partial differential equation. That's why this solution is known as singular integral or singular solution. Hopefully you enjoy this session. If you feel that this session also helpful for your any friends, definitely share with them. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.